پیر کامل بائی عمیر احمد پارٹ 24۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فوڈ۔ کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی وہاں کوئی نہیں گیا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی ہے؟ اور اسے دیکھو، کبھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں، طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں ہے، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسی دن لایا تھا۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے۔ ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا نہ ہی جاتے دیکھا، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً وہ اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرانی ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درشتی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو؟ تم جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، جب تک تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال تک نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں نہیں بتایا، سالار نے تیز لہجے سے کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، ثانیہ نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے لہجے میں ثانیہ کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی، مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی تم نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنا اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو، سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں کہا۔ کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں، سالار ایک دم ان کے غصے پر کچھ پزل ہو کر بولا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح، سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے، وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا رہا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ثانیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے، مگر کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔
सालार वहाँ बैठा नाश्ता करते हुए कुछ देर इन तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज ना जाने का मतलब घर में बंद हो जाना, और वो घर में बंद नहीं होना चाहता था। इसका मूड एकदम ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते इसने इसे अधूरा छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लॉन्च में बैठते ही जब लाजमा कुछ झिझकते हुए इनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की ज़रूरत है, सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराग दिल थे। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो। वो हनूस अखबार में मनहमक थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी। नासा ने बहुत सोच समझ कर सलार और उमैमा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फैसला किया था, क्योंकि इसे ये सब कुछ अब परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि इन दोनों के दरमियान राब्ते का ज़रिया वो थी, और फिर इसे और इसके पूरे ख़ानदान को पुलिस का सामना करना पड़े। इसीलिए अपने शौहर से मशवरे के बाद इसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फ़ैसला किया था, ताकि कम अज़ कम वो दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखें। चुप क्यों हो, बोलो। सिकंदर ने इसे खामोश पाकर एक बार फिर इसे कहा। इनकी नज़रें अब भी अखबार पर जमी हुई थीं। सिकंदर साहब, मैं आपको सलार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, नासरा ने बलाखिर एक तवील तवक्कुफ के बाद कहा। सिकंदर उस्मान ने बेख्तियार अखबार अपने चेहरे के सामने से हटाकर इसे देखा। सलार के बारे में क्या कहना चाहती हो? उन्होंने अखबार को सामने सेंटर टेबल पर फेंकते हुए संजीदगी से कहा। सलार साहब और उमैमा बीबी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सिकंदर उस्मान का दिल बेख्तियार उछलकर हलक में आ गया। क्या? बहुत दिन पहले एक दिन सलार साहब ने मुझसे कहा था कि मैं इनका मोबाइल अपनी बेटी के हाथ उमैमा तक पहुंचा दूं। सिकंदर उस्मान को लगा वो दोबारा कभी हिल नहीं सकेंगे। तो हाशिम मुबीन अहमद का ख्याल और इसरार ठीक था। इनके बदतरीन कयास और अंदाजे दुरुस्त थे। फिर इन्हें अपनी आवाज़ किसी खाई से आती लगी। मैंने इनकार कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। उन्होंने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, जिस पर मजबूरन मैं वो मोबाइल उमैमा बीबी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। अपनी पोजीशन को महफूज रखते हुए नासरा ने अपने बयान में झूठ के आमेज करते हुए कहा। फिर इसके कुछ दिन बाद एक दिन सलार साहब ने कहा कि कुछ कागजात उमैमा बीबी तक पहुंचा दूं, और फिर इसी वक्त इन कागजात को वापस ले आऊं। मैंने अपनी बेटी के ज़रिए वो कागजात उमैमा बीबी के पास पहुंचाकर वापस मंगा लिए और सलार साहब को दे दिए। मैंने सलार साहब से इन कागजात के बारे में पूछा, मगर उन्होंने नहीं बताया। मगर मुझे शक था कि शायद वो निकाहनामा था, क्योंकि इस वक्त सलार साहब के कमरे में 5 लोग मौजूद थे। इनमें से एक मौलवी भी था। सिकंदर उस्मान को वहाँ बैठे बैठे ठंडे पसीने आने लगे थे। और ये कब की बात है? उमैमा बीबी के जाने से चंद दिन पहले। नासरा ने कहा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सिकंदर उस्मान ने दर्स लहजे में कहा। मैं बहुत खौफजदा थी साहब जी। सलार साहब ने मुझे धमकियां दी थी कि अगर मैंने आपको या किसी को इस सारे मामले के बारे में बताया तो वो मुझे यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे, नासरा ने कहा। वो कौन लोग थे, इन्हें जानती हो? सिकंदर उस्मान ने बेहद इस्तराब के आलम में कहा। बस एक को, हसन साहब थे। इसने सलार के एक दोस्त का नाम लिया। बाकी और किसी को मैं नहीं जानती, नासरा ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन कौन इस बारे में जानता है? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मैं और मेरी बेटी और मेरा शौहर, नासर ने जल्दी जल्दी से कहा। मुलाजमों में से किसी को पता है? तौबा करे जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती? मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। तुमने जो कुछ किया इसके बारे में तो मैं बाद में तय करूँगा, मगर फ़िलहाल तुम एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। तुम किसी को भी इस सारे मामले के बारे में नहीं बताओगी। अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बार मैं ना सिर्फ तुम्हें वाकई इस घर से निकाल दूंगा, बल्कि मैं हाशिम मुबीन और पुलिस से कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। तुमने ही इन दोनों को गुमराह किया और तुम ही इन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाती रही। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या करेगी, तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल में गुजरेगी। वो गुस्से के आलम में इसे धमका रहे थे। नहीं साहब जी, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? आप मेरी ज़बान कटवा दीजिएगा अगर मैं मुँह से दोबारा इसके बारे में कुछ सुने। नासरा घबरा गई, मगर सिकंदर उस्मान ने रुखाई के साथ इसकी बात काट दी। बस काफ़ी है, अब तुम जाओ यहाँ से।
मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, उन्होंने इससे जाने का इशारा करते हुए कहा। सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। इस वक्त इनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और इस वक्त इन्हें पहली बार सलार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास हो रहा था। वो किस ढिठाई, महारत और बेहूदगी से इनसे झूठ बोलता रहा और इन्हें धोखा देता गया था और इन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका था। और अगर मुलाजमा इन्हें ये सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमईन बैठे होते। यही सोच कर के सरार उमैमा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इसकी गुमशुदगी में इसका कोई हिस्सा था। वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। वो जानते थे कि सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम मुबीन अहमद पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। इनका कुछ देर पहले का इत्मीनान एकदम ख़त्म हो गया था। वो अंदाज़ा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे, इन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सलार और मेमा के दरमियान ताल्लुक़ की नौवियत क्या थी। और इस वक्त इनका दिल चाह रहा था कि वो इसका गला दबा दें या इसे छूट कर दें, मगर वो जानते थे कि ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। सलार इनका वो बेटा था जिस पे वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इस तरह बेवकूफ़ बनने के बाद पहली बार सोच रहे थे कि वो अब सलार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो इसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसे ही जैसे वो कर रहा था। इसकी उमैमा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता कि इसकी जान पहचान उमैमा से कैसे हुई, कोई बच्चा तो है नहीं कि मैं उंगली पकड़ कर चलाती, तैयबा ने कदरे खफगी से कहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा था कि इस पर नज़र रखा करो, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटीज़ से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ क्यों है? तैयबा एकदम भड़क उठी। आप भी तो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए थी, सारा इल्ज़ाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुमको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा और इस बहस को ख़त्म करो। उमैमा के साथ शादी, तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि हाशिम मुबीन को जब इस ताल्लुक़ का पता चलेगा तो क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मुझे ये सोचकर शौक लग रहा है, इसने ऐसी हरकत करने का सोच कैसे लिया? इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्कर इसी वक्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल इसने खुदकुशी की कोशिश के बाद इसकी जान पहचान हुई थी। हम बेवकूफ़ थे कि हमने इस सारे मामले पर नज़र नहीं रखी, वरना शायद ये सब कुछ पहले ही सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपटी मसलते हुए कहने लगे थे। और यकीनन ये लड़की भी इसी के साथ अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो निकाह नहीं कर सकता। और हाशिम मुबीन अहमद को देखें, वो यूं शोर मचा रहे हैं जैसे इसकी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जो किया है सलार नहीं किया है, उन्होंने तो FIR भी अगवा की दर्ज करवाई है। तैयबा नए सिरे से लगने लगी। जो भी है, कसूर तुम्हारे बेटे का है। हाँ, वो ऐसे कामों में पड़ता, इस तरह फंसता, और अब तो तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें इस सूरत हाल से किस तरह बचना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस या हाशिम मुबीन अहमद, अपने पास कोई सबूत नहीं है और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन इन तक कोई सबूत पहुंच गया, इस दिन क्या होगा, तुमने ये सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर इम्कानात की बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो नहीं है और हो सकता है हो भी ना। इसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है और धोखा ये हो कि इसका राब्ता इस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन ये भी है इस लड़की का राब्ता इसके साथ हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आया। हाँ, हो सकता है। फिर क्या किया जाए? मैं इससे बात करूँगा, समझो पत्थर के साथ अपना सर फाड़ूंगा और फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है, उन्होंने तनफ्फुर आमेज़ लहजे में कहा। बस चंद माह में इसका BA मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं इसे बाहर भिजवा दूंगा। कम अज़ कम हर वक्त हाशिम मुबीन अहमद की तरफ से जिन अंदेशों का शिकार रहता हूँ वो तो ख़त्म होंगे। उन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। मगर आप एक चीज़ भूल रहे हैं सिकंदर, तैयबा ने बड़ी संजीदगी से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने इन्हें चौंक कर देखा। सलार की उमैमा के साथ खुफिया शादी, इस शादी के बारे में जो भी करना है वो आपको खुद ही करना है। क्या करेंगे इस शादी के बारे में? तलाक के अलावा इस शादी का और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने कतई लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं है तो तलाक देने पर कैसे राज़ी हो जाएगा? जब मैं इसे सबूत पेश करूंगा तो इसे अपनी शादी का एतराफ़ करना पड़ेगा
और अगर शादी का एतराफ़ करने के बाद भी इसने उमैमा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और मैं निकाल लूँगा, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से इसे तलाक दे या फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़े। ये मामला ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र ख्वार करती है। इससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे इस बार मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आग कर देने का इख्तियार रखता हूँ, सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज में कहा। हसन कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक होटल में था जब अचानक इसे अपने वालिद की कॉल मिली। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचने के लिए कह रहे थे। इनका लहजा बेहद अजीब था, मगर हसन ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट के बाद अपने घर पहुंचा तो पोच में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चौकन्ना हो गया। वो सरार के घर की तमाम गाड़ियों और इनके नंबरों को अच्छी तरह पहचानता था। सिकंदर अंकल को मेरे इस मामले में इन्वॉल्व होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सलार का दोस्त समझकर पूछेंगे। नॉवेल अभी जारी है। अगर आपको पसंद आया मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब